through online mode. And today I'll be answering that question first, then only we'll be approaching. बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था. Yesterday we said we can divide the accounts, all the transactions happening within the firm. Either we have persons, dealings with the persons, or we have assets, or we have incomes and expenses. Very good. Incomes and expenses, gains and losses. That's what we have in a normal business setting. या तो बिजनेस में गेन होता है या तो बिजनेस में लॉस होता है. बिजनेस में इनकम्स होती है, एक्सपेंसेस होते ही होते हैं. बिजनेस में एसेट्स होते ही होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स. और बिजनेस में डीलिंग्स विद द पर्संस होते ही होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देम वी डिवाइड अकाउंट्स इनटू 3 heads. Account is a particular head involving similar type of transactions. So we said we have 3 types of accounts. For persons we have personal account. ध्यान दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था. For assets we have real account. And for incomes, expenses, gains and losses, we have nominal account. Clear? क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सर जब हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अंडर रियल अकाउंट, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अंडर रियल अकाउंट, then why we record debtors under the personal account? Debtor भी तो asset ही है, debtor भी तो asset ही है. Why not to record that under the real account? या prepaid expenses भी तो asset ही है. Why not to record that under the real account? Outstanding income वो भी तो एसेट ही है. Why not to record that in the real account? Why we record debtors, comma, outstanding incomes and prepaid expenses under which account? Personal account. Then it can be natural personal account, artificial personal account and representative personal account. टीचर्स कॉथ है ना, जेन्युइन क्वेश्चन. इसका आंसर एक ही है. मैं बड़ा खुश हो गया, ऐसा क्वेश्चन आया था. बेसिकली वी हैव 2 accounts, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल एंड पर्सनल में हम सारा लेते हैं, इम्पर्सनल में लेते हैं रियल और नॉमिनल. और रियल में वो वाले एसेट्स आते हैं विच आर ईदर टेंजिबल और आर इंटेंजिबल. ऐ शाबाश. नहीं, वो करंट कोई आता है, डेटर इसमें आ जाता है. सो बेसिकली इट इज वी हैव पर्सनल एंड इम्पर्सनल. रियल एंड नॉमिनल दे आर कलेक्टिवली नोन एज इम्पर्सनल. अगर वहां पे सवाल आए आपको Which among them is an impersonal account? Impersonal कौन कौन सा होता है, रियल और नॉमिनल. इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था कि why don't we consider debtors or prepaid expenses under the tutelage of real account? Because we have personal account and we have युद्ध में जवाब. क्लियर है? So now it should be crystal clear. Either we have personal or we have
impersonal. In personal, we only record the transactions relating to the persons. वो हो सकता है बेटे नेचुरल पर्सन, जीशान्स अकाउंट, शाहकार's अकाउंट, शुएब्स अकाउंट, सलमान's अकाउंट, जहूर's अकाउंट, or it can be artificial personal account. Reliance's account, Airtel's account, JK Bank's account, Punjab National Bank's account, State Financial Corporation's account. That is an artificial personal account. Or it can be a representative personal account which represents a group of persons in which you have prepaid expenses, outstanding expenses, prepaid accrued incomes, outstanding expenses. All those four come under the artificial representative personal account. Now, if I tell you certain accounts, can you classify them under the domain of personal, real or nominal? Very good. Let's start. I'll be today asking questions to you people one by one. You will tell me whether is this a personal account, a real account or a nominal account. Clear है? तो रियल में वही एसेट्स आते हैं विच आर टेंजिबल और आर इंटेंजिबल. अब जो डेटर्स है वो किस में आता है? वो पर्सनल में आता है, बिकॉज दैट इज ऑफ द पर्सनल नेचर, दैट इज नॉट इम्पर्सनल. क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड. नाउ आई विल सी हाउ वेल कैन यू आंसर माई क्यूरीज. कल आप जरूरी मुझसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछने चाहिए. एट एनी कॉस्ट आपको हर किसी को एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो में कंफ्यूजन हुआ होना चाहिए. नहीं हुआ है फिर आप झूठ बोल रहे हैं. आपको हुआ होना चाहिए कंफ्यूजन. जब आप 100-150 एंट्रीज करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तभी जाके तो कंफ्यूजन होगा. देन यू विल आस्क देम एंड टुमारो वी विल क्लियर द डाउट्स. क्लियर है? ध्यान दीजिएगा. We know now we have a personal account. Personal account is the account relating to the persons, be it a natural person, be it an artificial person or a representative personal account. Then you have a real account. The real account is the account relating to the assets, impersonal assets, both tangible as well as intangible. अब जो assets में personal nature के हैं वो किस में आएंगे? Personal account. Both this personal account either will be assets or liabilities. Will be either assets or. कोई मुझे बोलेगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप क्या बोलते हो, बिजनेस में तो लायबिलिटीज भी होती है. हाँ होती है. वो किसके अंडर आती है? पर्सनल के. वेरी गुड. एंड यू हैव नॉमिनल अकाउंट. इन नॉमिनल अकाउंट वी हैव एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. Clear? Clear? Now I will be asking you one by one. You will tell me whether it is a personal, real or a nominal account. You gentlemen. Capital. गलत भी हो जाए कोई नहीं. It's a discussion oriented class today. Capital. Is it a real? Is it a personal or is it a nominal? Very good. Capital is a personal account. Representative personal. It represents that sole proprietor who has given the capital. Brilliant. Capital is a personal account.
Who is for the first time in my class today? आप बहुत बाउंसर्स जारी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। 1 Feb से हमें फ्रेश बैच स्टार्ट करना है। यू कैन सिट विद दैट बैच एज वेल, और यू कैन वॉच ऑल दी ऑनलाइन लेक्चर्स एंड बी एट द सेम पेज विद देम। 2 ways गुरु बास ना यमो मेहनत दान दोहन मेहनत इस वनकस योतन वतमत, they are, that's why he was able to answer it. So you have to watch those lectures. Till yesterday you have to watch every lecture, or join the batch starting on 1st Feb. Tan hekiu bihit parvai chun. In that batch I'll be starting from scratch, as if obviously that's a new batch, new people. Clear hai? Now very good bete, capital is a personal account. Brilliant. आप जेंटलमैन बोलेंगे, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई इंसल्ट नहीं है ये। ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स। हु सेड नॉमिनल? हु सेड नॉमिनल? नॉमिनल कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पर्संस। ये बिजनेस का खर्चा ये बिजनेसमैन ने अपने लिए पैसा निकाला है। सो अगेन इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। It represents, a drawing loss नहीं है। Drawing is not a loss. Drawing is never shown in the statement of accounts. Profit and loss account में कभी भी drawings नहीं दिखाया जाता है, because business and businessmen are 2 different entities. Drawing is that amount of money, or either in cash or in kind, which is withdrawn by the businessman for his personal use. So इसको किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। So ये कौन सा अकाउंट हो गया? कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। ड्रॉविंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आप बोलिएंगे बेटी वहां पे, द वन इन द ग्रीन, आप। यस यू, व्हाट इज योर नेम? गुलशन। तहसन नजर दिसयात जवाब। डेटर्स, डेट्स हपसा डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स। गलती गश परवाह नहीं किया। वेरी गुड। इट्स अ पर्सनल अकाउंट है ये एसेट, मगर इट्स अ पर्सनल, ऑफ पर्सनल नेचर। कोई आदमी होगा ये, कोई कंपनी होगा ये। नो मैडम, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर ये कोई आदमी होगा या कोई कंपनी होगी। इट्स अ नेचुरल और आर्टिफिशियल। है ये पर्सनल? है ये? है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। वरना है ये एसेट, मगर एसेट रियल में हम वही वाले एसेट्स लेते हैं इनकी जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी या इंटेंजिबल होंगे। पर्सनल वाले जो एसेट्स होंगे वो किस में आते हैं? पर्सनल में। इसमें हम इम्पर्सनल लेते हैं। क्या लेते हैं? वेरी गुड। गो बेटी, डेटर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। डेटर, हां, अब जब डेटर्स ऑन होल है तब बोल सकते हैं, मगर इट्स अ पर्सनल अकाउंट। इट्स अ, अब कौन सा पर्सनल है? ये तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये तो नेचुरल पर्सन। गुलाम मोहम्मद दारिस, मोहम्मद सुल्तान दारिस, ऑल दोज पीपल, दे आर नेचुरल पर्संस। या रिलायंस कंपनी हमें ओ करती है, फलानी कंपनी हमें ओ करती है। वेरी गुड, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ब्रिलियंट। डेटर्स, सेल्स, सेल्स, sales, nominal, because sales is an income of the business. It's because of sales a business is earning. So sales is a, very good. Sales is a nominal account. Very good. You people are going good. Wonderful.
सैलरीज नॉमिनल अकाउंट, ब्रिलियंट। खर्चा है बिजनेस का, वट एवर इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आप ही से वापस क्वेश्चन है, बाकी चुप करेंगे। कच्ची वहदानी रूहानियत हेचम बह गा तौर। छपा कर बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ, आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल, नॉमिनल क्योंकि खर्चा है, मगर ये तो अभी पे ही नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ बिकॉज ये लायबिलिटी है, हमें सैलरी ड्यू हुई है मगर पे। तो जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग आगे होगा वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आप किनको सैलरी ओ करते हो, एम्प्लॉई, ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप को। सो ये कौन सा अकाउंट है, मगर पर्सनल। समझ आया गुबर, यू गॉट इट रॉन्ग। तवे कोर मे कंफ्यूज मे जुत मे गोड सैलरी, सैलरी कुछ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, सैलरी कुछ अकाउंट, मगर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कोरमुत वन अभी नहीं है, हम पे लायबिलिटी है। ऑल लायबिलिटीज कम इन पर्सनल, ऑल लायबिलिटीज कम इन, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके। यहां की ओर प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट एग्जैक्टली पर्सनल अकाउंट। खाली रेंट होगा दैट्स अ नॉमिनल अकाउंट। इट्स प्रीपेड रेंट, it's an asset but representing a group, so it is prepaid, prepaid rent. So all outstanding prepaid, they all come in personal account. Very good, ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड। अब मगर ये बात याद रखिएगा, this is a personal, these two are impersonal. Very good, wonderful. Nominal, ग्रेन है ना, ओके। आपसे बात है, आप ही बोलेंगे। कमीशन, 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 how many of you say it's a nominal account? Commission, क्या हो गया, एक सेकंड, हाउ मेनी ऑफ यू से कमीशन इज अ पर्सनल अकाउंट, कमीशन इज अ पर्सनल अकाउंट, हाउ मेनी ऑफ यू से कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, है तु नहीं सुन कुनी से, हाउ मेनी ऑफ यू से कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, यस इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन। कमीशन रिसीव भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं। अगर रिसीव किया तो ये खर्चा है, अगर रिसीव किया तो ये इनकम है, अगर पे किया तो ये खर्चा है। इन बोथ द केसेस इट इज नॉमिनल अकाउंट। सैलरी करो न रिसीव जहन मा करो, फर्म कित कर सैलरी रिसीव, वी पे द सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। हाँ, कमीशन कभी पे भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर है? In both the cases it is nominal account. Clear? क्योंकि ये इनकम भी है और एक्सपेंस, बट इन बोथ द केसेस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। वन छो वारिया प्रैक्टिस जरूरत।
सॉरी बेटा, discount, very good. Commission is a nominal account. Whether we pay the commission or we receive the commission, it is a nominal account. Madam ji, raat wo na me akis business shasa operating income to commission agar zeno wo non operating income hai, because you don't earn that from the core operations of the business. Clear hai? Indirect तरीके से. Very good. Clear? Brilliant, beautiful. You people are doing great. Discount. Discount. Discount loss भी हो सकता है, gain भी हो सकता है. Discount loss भी हो सकता है. In both the cases it is a. Now how discount is a gain and how discount is a. You choice parnoi bithi. कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, मगर वंकस करना अब एक्सप्लेन, थोड़ा सा करूंगा मैं एक्सप्लेन. वेरी गुड. डिस्काउंट इज विच अकाउंट? इन बोथ द केसेस. इन आई शबाश, आई ओ दिस पर्सन रुपीज 10,000. आई एम अ बिजनेसमैन, आई ओ हिम 10,000. मैंने अब काम इसके साथ वो किया, मैंने बोला नाउ ही 1,000 दूंगा. ही गेव मी अ डिस्काउंट ऑफ. मैं आवा ये फायदे के नुकसान फायदा. So which account this is? Non. Credit all, sorry, nominal account records all gains as well as loss. This person owed me 10,000. इसने अब टाल मटोल वो ये करके 9,500 ही दिया. मैंने इसको डिस्काउंट दिया. I paid him discount. So again it's a loss to me, मगर it will be recorded under nominal. Clear है? Clear है? Clear है? Very good. Brilliant. So discount is a nominal account. Great. Plant and machinery, real account because it has a physical existence. Real. उस बच्चे का बड़ा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, सर डेटर्स को क्यों नहीं यहां से उठा के रियल में रखते हैं? क्योंकि डेटर्स ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है. ये मतलब कोई पर्सन होता है जो ओ करता है बिजनेस को, ये रिप्रेजेंट कोई है. सो वी कॉल देम पर्सन, वी कीप देम अंडर द पर्सनल. ये जरूरी नहीं है हर कोई एसेट रियल में रखना है, इम्पर्सनल वाले रियल में रखने. क्लियर है? कुछ एसेट्स हम अंडर पर्सनल भी रख सकते हैं. वेरी गुड. प्लांट एंड मशीनरी, इट्स एन एसेट, अ फिजिकल एसेट. वेरी गुड, वेरी गुड. क्रेडिटर्स, 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 पर्सनल, इट्स अ लायबिलिटी. ऑल द लायबिलिटीज आर टू बी शोन अंडर पर्सनल अकाउंट. है ना? क्रेडिटर किसको ओ करते हैं पैसे? वो कोई पर्सन है, बैंक है, मनी लेंडर है, तो वो किसके अंडर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर. वेरी गुड, ब्रिलियंट. जेंटलमैन यू आंसर दिस. डेप्रिसिएशन, गोडनिच लटि आसत बूझमुत, छु परन बुथ. डेप्रिसिएशन, it's a nominal account. Brilliant. Depreciation is a loss, a reduction in the value of the asset. It's a loss. Very good. Depreciation is a nominal account. Brilliant. You people are doing good today. Very good. आप बोलेंगे द गर्ल इन द स्पेक्स. आप गलत भी हो जाए कोई नहीं. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, चुप ना, इंटरेस्ट गलत छू बना. वेरी गुड. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल. आई ट्राई टू sabotage her. Interest is a nominal account. Whether you pay the interest or you कुछ नहीं ज्यादा पे ही करा इंटरेस्ट. बैंक लोन लिया, बैंक लोन पे किया इंटरेस्ट, नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, हमारे पास सेविंग अकाउंट में बैलेंस थी, उस पर इंटरेस्ट आ गया, अभी रिसीव किया नॉमिनल, तब फायदा आया, इनकम आई, इनडायरेक्ट इनकम, है ना? हमें बहुत सारे पैसे थे, मैंने बिजनेस किया,
I had a lot of money in the business. I thought, why to, lot of current assets are idle. Cash is an idle asset. Cash is an अगर वो आइडल रहा, it will give you no return, it will generate no return. मैंने वो आपको अपनी बेटी की कहानी बोली थी एक दिन, बोली थी ना, गई ना तो पत प्रॉब्लम हुई, ताकि आई ने करती पत की ही गई ना प्रॉब्लम, आइडल रहा ना वो, तो मुझे बिजनेस में कमाया बहुत, मैंने बिजनेस का ही पैसा मैंने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दिया, उधर से मुझे इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए? इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. सो इंटरेस्ट इज अ nominal account. It is a, whether you receive the interest or if you pay the interest on loan, it is a expense. It is a nominal account. Clear है? Clear है? हाँ, था नजर यूँ. It is a nominal account. Interest, very good. Bank loan, personal account, yes, you owe it to the bank. Very good, brilliant, wonderful. Artificial personal account, very good. You people are going good. Okay, you. Do I check na yun? Very good. Cash in hand. That's up. Cash in hand. Manikuri real cha, nominal cha, kin personal cha? Real. क्यों? Asset है, एक physical asset है. हाँ? Real account है. Okay. आप ही से वापस सवाल है आपसे. जी, गलत भी हो जाए कोई नहीं. Cash at bank. Real है, ये personal नहीं है. पर्सनल, ये आपका पैसा है, कभी भी निकाल सकते हो. इट्स नॉट पर्सनल. लॉट ऑफ पीपल से बैंक के पास है, मत बैंक ने बंद रखा है अपने पास, ये मत बैंक आपको ओव करता है. नो, इट डजंट रिप्रेजेंट. इट इज योर मनी, यू हैव केप्ट इट इन द कस्टडी ऑफ द बैंक. इट्स अ रियल अकाउंट. ये एसेट है आपका. ये एक्सेंट, ये डेटर नहीं है. डेटर का है कि कभी दे भी नहीं सकता है पैसा, नहीं भी दे सकता है पैसा. Let's understand this well. Very good. ये वो गो असल ये वो डाउट. अच्छा, ये मैं क्वेश्चन पद गलत गसा. ये मिसी जहूर बराबर इसको लिखता बेचारा, लॉजिक भी लगाता, बोलता इट इज अ पर्सनल अकाउंट. कंपेयर इट विद डेटर. डेटर कौन होता है? वो भी एसेट होता है, मगर वो कोई पर्सन होता है हु ओव्स टू द बिजनेस. हु, वहां प्रोबेबिलिटी है या वो वापस भी दे सकता है, और उधर एक टाइम लिमिट होती है. यू हैव, वो तब है, वो एक्सेप्शनल केस है. खसारे में भी फिर भी आपका पैसा बहुत सेफ होता है उधर. डिपॉजिटर्स, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, वो तो वैसे नहीं है ना. आप तो सेफ्टी के लिए ही बैंक में पैसे रखते हो. आप क्यों बैंक में? वाई पीपल कीप मनी इन द बैंक? बैंक इज अ पर्सन, बट बैंक डजंट ओव यू दैट मनी. जो पर्सन डिपॉजिट करता है कैश बैंक में, वो भी तो पर्सन है. नहीं, वो पर्सन नहीं है. वो बिजनेस अपना पैसा बैंक में रखता है, वो एसेट है आपका. जैसे डेटर भी आपका एसेट है, मगर डेटर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल. बिकॉज इट इज लाइंग विद द पर्सन समवन. बैंक is a financial institution which accepts deposits from the public and gives them in the form of loans. आपका पैसा है, किसके पास है? बैंक के पास. गए और निकाला, that's it. If you're debtor, you cannot do that. I owe you 10,000. Will you come and take out the 10,000? There's a deadline, there's a time limit. That's why it's a personal. Bank, it is your money lying with. When you owe to the bank, for that there's a definite time period. Within this time you have to repay it back. At the time we say it's a personal. Bank loan is a personal. But your money, it can man say cash in hand. Chathod na safe mas cash kya, chathod bank mas cash that you keep for the safety. That you keep for the safety of the business. Clear hai? Clear hai? Clear hai? Very good. Let's do few more. Okay. Furniture. Very good. Furniture is a
asset, it's a real account. Very good. Okay, investments. How many of you say investment is a nominal account? It's a real account. It's a real, you can anytime convert it into, it belongs to you. आपने अपने पैसे किसी कंपनी के शेयर में डाले हैं, प्रॉपर्टी में डाले हैं. आपको आइडल नहीं रखना चाहते हैं पैसे, आपने इनको म्यूचुअल फंड्स में वुचवान तेल वनो अतंत यम च पर्सनल क्या मिच बेक कंपनी हिंद शेयर. नो, इट्स योर चॉइस. एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश. सो विच इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट. वेरी गुड. हां, जो इन्वेस्टमेंट से आप इंटरेस्ट कमाओगे वो इंटरेस्ट कौन सा है? नो. वेरी गुड. इनडायरेक्ट इनकम. ब्रिलियंट. dividend received कैसे नॉमिनल? आप नहीं, आपको, हां, हमारे लिए वो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम. डिविडेंड कब इंसान रिसीव करता है? जब हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं और वो distribute करते हैं earnings among the shareholders in the form of dividend. So dividend is which account? It's a nominal account. It's a nominal account. Very good. आप बोलेंगे bad debt. It's a loss. तो कौन सा अकाउंट है? अब इधर भी बोलेंगे ये कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इसने पैसा खाया, ये वापस देने वाला, तभी तो इसको बैड डेट बोला. सो बैड डेट इज नॉट पर्सनल. बैड डेट इज नॉट पर्सनल. या छो एसेट आसा या छा लायबिलिटी आसा. बैड डेट तो नुकसान है. हर कोई नुकसान कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल. सो बैड डेट इज विच अकाउंट? बैड डेट इज विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. बेटी, जहां भी एक बात आप याद रखेंगे सब. नाउ देन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फास्ट. जब भी होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड जिसको भी वर्ड आगे होगा, आउटस्टैंडिंग जिसको भी वर्ड आगे होगा, दैट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. यस, दैट्स इट. हाँ, क्लियर है? क्लियर है? अगर ऐसे भी होगा, सैलरी पेड, सैलरी विच अकाउंट? दिस इज नॉमिनल. दिस इज यू हैव पेड इट. यू हैव पेड इट. अगर लिखित थव नजर, अगर लिखित सैलरी पेबल, सैलरी ये भी होता है आउटस्टैंडिंग, ये भी होता है पेबल, अभी दी को, ये भी क्या बन जाएगा? पर्सनल. गोई शुन जरूरी आउटस्टैंडिंग तो प्रिपेयर्ड हो तो लिखित पेबल, एडवांस, ये सारे क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ये बात याद रखिएगा. व्हेनेवर वर्ड्स लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, payable are prefixed and suffixed, we call them which accounts? Representative personal accounts. Clear? Very good. क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, अब आप लोग जवाब देंगे इसका. आप, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा. जीशान यासीन साहब का क्वेश्चन है. आई होप जीशान साहब हमें सुन रहे होंगे. नाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नाउ यू कैन आस्क दिस. याद साहब जहूर आप जवाब दोगे, मैं नहीं जवाब दूंगा. नॉमिनल अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर. वेरी गुड. पहला ऑप्शन है इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल. नॉमिनल क्या है? खुद, क्योंकि ये खाली पर्सनल है, ये दो क्या है? इम्पर्सनल. ये मी आयशा सवाल आया, अब समझ, आप ही लोगों ने जवाब दिया. वेरी गुड जीशान, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप यू हैव गॉट द आंसर. थैंक यू.
फरमाइए और कुछ. Now tomorrow what I expect from you. Now you also have to work hard. मेरा महज चिल्लाना यहां पे फायदा नहीं देगा. जो अल्लामा इकबाल बना, नक्श है सबना तमाम खूनी जिगर के बगैर, नगमा है सौदा ये खाम खूनी जिगर के बगैर. Still मेज बस outline till you don't mix your sweat and blood in this by working hard at home. ये फिर महज चिल्लाना आ रहा है, बेचुनी कहीं दे. Tomorrow I am expecting two things from you. One, confusions regarding accounting equation. Confusion गछ आसुन कह तगमती है यथ क्या बन accounting equation and classification. सर ये अकाउंट छस रियल, नॉमिनल कि न पर्सनल. क्लियर है? फिर मैं पूछूंगा आपसे चीजें, फिर आप उसकी जवाब देंगे. क्लियर है? क्लियर है? नाउ इफ वी रैप अप द थिंग्स, वी नो इन आवर बिजनेस there are only three things happening. Either dealing with the persons, just supplier से माल लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कस्टमर्स को माल बेचते हैं. ये गई पर्सन्स, ये गई यम हेकन नेचुरल तसित, यम हेकन आर्टिफिशियल तसित, तो पत कुछ विज बना रिप्रेजेंटेटिव ते. एंड यू बाय और सेल एसेट्स and you incur expenses, you incur incomes, you incur losses and you earn profits and gains. क्लियर है बेटी? क्लियर है बेटा? बिजनेस में तो यही चीजें होती है ना, यही तीन चीजें. So all the transactions relating to the persons are kept in which account? Personal account. All the transactions relating to the assets are kept in which account? And which assets? Impersonal assets, like tangible as well as intangible. अलबत्ता वो डेटर्स और प्रीपेड और वो वाले किस में आते हैं? पर्सनल. ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. नॉमिनल अकाउंट, expenses, losses, incomes, and they are to be kept under nominal account. This is a personal account and these two are impersonal accounts. Clear? Clear? Today you conceptualize this at your home. Try to come up with queries which we'll be answering on Friday tomorrow, and on Saturday we'll be doing the golden rules of accounting. अब हमें पता है भाई, because we know double entry system of accounting. एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा. अब इन्हीं के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट रियल का. पर्सनल अकाउंट कब डेबिट होगा, पर्सनल अकाउंट कब क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट कब डेबिट होगा. वी बिलीव नाउ इन दिस, वी हैव फेथ ऑन दिस. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रैक्टिकली देख लिया कि वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. यस, क्वेश्चन है किसी को? है क्वेश्चन किसी को? छा क्वेश्चन कैसे? Does anybody have a question? They can ask. 3